Hello everyone, welcome to your own channel to keep learning and keep growing. Students, as I promised you that I will come back with the marking scheme and the exam pattern of English language paper for class 10th. So today we are going to discuss the same. For that, let us discuss the question paper. So here is the question paper of English which is released by the CBSE. As you can see here in the general instructions that it will consist three sections. First one is reading, second is writing and grammar, and third will be of literature. जो आपका फर्स्ट सेक्शन है बेटा, अगर हम लोग मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, दिस will be of 10 marks, writing skill will be of 5 marks, grammar portion will also be of 5 marks, so total it is of 10 marks, and literature will consist rest of the 20 marks. So this complete will make your 40 marks. So let us see what kind of questions and everything you will have. As you can see, this is your section A, reading part, 10 marks it is written here. But how 10 marks? This is your first passage, and then it consists these questions. And it is written here that you have to answer any 5, and each question carry 1 marks. Okay, so it means one passage which may consist, I think, 6 question. Let us see. Yes, it consists 6 question. The first passage consists 6 question, and you have to attempt any 5, as it is of 5 marks. Then similarly there is the second passage. For that also you have to answer any 5 of the 6 question. So in this way, two passages, two comprehensions will be there in your question paper of 5 marks each, which will totally make 10 marks, reading section. Then comes your writing and grammar section. Writing section में देखेंगे बेटा, it is clearly written, attempt any one from 1 and 2. एक 1 क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, यू कैन सी हेयर 1. तो आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ दिस. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है. स्टडी द कंसेप्ट चार्ट फॉर फ्रॉम द सेल्फ हेल्प मैगजीन सेक्शन ऑफ अ मंथली publication. So here chart is given, and what you have to do, you have to write a paragraph, you have to explain everything that is given in this flow chart. So ये इस तरह का जो आपका क्वेश्चन होता है, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल स्टडी. तो एक आपका एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एनालिसिस बेस्ड जो है आपका क्वेश्चन आएगा, और इसी में अब जो आपको चॉइस है, चॉइस में क्या दिया है. For the choice you have second question here. इसको चॉइस मत समझ लेना बेटा, इसको चॉइस मत समझ लेना. इट इज़ क्लियरली रिटन हेयर फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट. जहाँ पर नंबर 2 मार्क्ड है वहाँ पर आपका चॉइस वाला क्वेश्चन है आपके लिए. और अगर हम इस सैम्पल पेपर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिला है, यू आर Samina Zaveri of class 10th Vadodara, Gujarat. You come across the following information on a local library notice board. तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी है और इसके बेसिस पर यू वांट टू पार्टिसिपेट एंड यू हैव टू राइट अ लेटर. तो इट मीन्स यहाँ पर आपको दिया गया है लेटर ऑफ इंक्वायरी. तो आपके लेटर की बात करें तो आपके सिलेबस में बेटा फॉर्मल लेटर हैं सारे. ओके, फॉर्मल में इंक्वायरी है, ऑर्डर प्लेसमेंट एंड कैंसिल का है, या कंप्लेंट लेटर है. ओके, तो इस तरीके से जो है आपके फॉर्मल लेटर हैं. तो आपने देखा है अभी आपके पेपर में क्या है बेटा, द फर्स्ट वन इज़ द एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, एनालिटिकल स्टडी है, और दूसरे में है आपका लेटर. और आपने दोनों में से कोई एक करना है. गलती से भी दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें, बिकॉज आप लोगों के पास टाइम शॉर्टेज भी रहेगी. तो विच एवर यू फील that you can attempt it very properly, okay, do only that question. next is हमारे देखो यहाँ पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कवर हो गया. सॉरी, नॉट 20, 15 मार्क्स, क्योंकि
राइटिंग सेक्शन में आपने कोई एक करना है 5 नंबर का, 10 नंबर के हमारे रीडिंग सेक्शन था। अभी राइटिंग के साथ अब हमारा आ गया 5 नंबर का ग्रामर। अब ग्रामर पार्ट आपको कैसे दिए, देखो 3 मार्क्स की तो इन्होंने दी है आपको एडिटिंग फॉर्म, तो एडिटिंग या ओमिशन कुछ भी आ सकता है। इन्होंने एडिटिंग दिया है तो आप एडिटिंग ही सोच कर ना चले, इट कैन बी ओमिशन आल्सो। ओमिशन में क्या होगा, द वर्ड विल बी टोटली मिसिंग फ्रॉम द लाइन एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच वर्ड इट कैन बी एंड वेयर यू विल प्लेस इट, ठीक है, वो आप देखेंगे। प्लस अब ये तो हो गए 3 नंबर, लेकिन हमारे अभी 2 मार्क्स और बचे हैं, तो वो 2 मार्क्स क्या हैं आपके, देखो वो 2 मार्क्स में बेटा इन्होंने दी है आपको नरेशन। Here is the conversation between biology teacher and Sameer. So these dialogues are written in form of direct speech and you have to fill these blanks on the basis of the above conversation. और जो एक चीज़ है यहाँ पे नोट करने वाली, जो आपका टर्म 1 का पेपर था, ऑप्शंस वर गिवन टू यू, ऑप्शंस वर देयर, बट इन दिस सैम्पल पेपर देयर आर नो ऑप्शंस। तो आपको नरेशन प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से फिल कर सको। तो यहाँ पर हमारा कवर होता है 20 मार्क्स का आपका पेपर। नेक्स्ट इज योर लास्ट सेक्शन, दैट इज सी, विच कंसिस्ट योर लिटरेचर पार्ट ऑफ 20 मार्क्स। अब इसमें देखो क्या रहेगा आपका, जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन, सेकेंड क्वेश्चन आपका सेकेंड कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड क्वेश्चन आपका जो राइटिंग स्किल में चॉइस है, फोर्थ क्वेश्चन आपका एडिटिंग हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन आपका नरेशन बेस्ड हो गया। तो अब ये है हमारा 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में यू हैव टू आंसर एनी 6 क्वेश्चंस। आपको इसका मतलब क्वेश्चन 7 गिवन होंगे, यस यू कैन सी हियर, you can see here that 7 questions are given and you have to attempt any 6 and these questions are of 2 marks each। तो 2 6 12 मार्क्स आपके देखो यहाँ पर हमारे इसमें कवर हो गए शॉर्ट क्वेश्चन में। और हमारा टोटल सेक्शन कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। तो हमारे पास बचे हैं अभी 8 मार्क्स। तो लेट अस सी 8 मार्क्स में आप क्या कवर करेंगे आप। देन इज योर क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है आपका। यू हैव टू आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 वर्ड्स ईच। इट मीन्स यहाँ पर अब आपको आई थिंक yes 3 questions are given and you have to attempt any 2 and these questions, this section consists question of 4 marks each। 4 marks each means 8 marks का आपका ये क्वेश्चन रहेगा टोटल, 4 ईच। और ऊपर वाला था आपका 12 मार्क्स और यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं 20 मार्क्स। तो इस तरीके से बेटा जो है आपका पेपर रहेगा। देखो हमें इसमें इंटरनल चॉइस आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मिल रही है, 4 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी। सिर्फ ग्रामर पोर्शन है जहाँ पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अदरवाइज राइटिंग सेक्शन में भी आपके पास चॉइस है एनालिटिकल और लेटर के बीच में। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आपकी इंग्लिश पेपर की मार्किंग स्कीम, एग्ज़ाम पैटर्न प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। नाउ प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम ऑन after observing the paper carefully. Just go through your weak points, your strong points, क्या चीज़ आपको अच्छे से आती है और किस चीज़ पर आपने काम करना है। All the best for your exam. Have a good day.